Good morning, students. Today we are doing worksheet number 2 of block 7. So take out your this workbook. Worksheet block 7, worksheet number 2, page number 40. S2 worksheet, life cycle of a frog. Life cycle of a frog. Student, I shared one video with you related to life cycle of a frog. So you go and watch that video. After that you start writing. Okay. Now today's date is 25 August 2020, Tuesday, and this is your classwork. So now in first question we have describe the stages in the life cycle of a frog. हमें frog की पूरी life cycle किस according चलती है उसे describe करना है कि first stage कौन सी होती है, then second stage कौन सी होती है, हमें सारी stages define करनी है. एंड स्टूडेंट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको भी ऐसे लाइंस ड्रॉ करनी है कॉलम्स में. आपके कॉलम भी ब्लैंक ही होंगे, लेकिन आपको उनके अंदर पहले स्केल से प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करनी है, उसके बाद में राइटिंग स्टार्ट करनी है. बिकॉज योर राइटिंग शुड बी वेरी नीट एंड क्लीन एंड योर वर्क डोंट लुक बी अनटाइडी. आपका वर्क बिल्कुल अनटाइडी नहीं लगना चाहिए. इट शुड बी वेरी वेरी नीट एंड क्लीन. ओके, नाउ फर्स्ट इज, नाउ वी राइट फ्रॉग lay frog lay a lot of eggs. Frog lay a lot of eggs in water. In water, the eggs have a jelly-like coating on them. फर्स्ट क्या होता है हमारा एग. सबसे पहले एग होता है. फ्रॉग ले अ लॉट ऑफ एग्स इन वाटर. वाटर में बहुत सारे एग्स देता है फ्रॉग. द एग्स हैव अ जेली लाइक कोटिंग ऑन दैम. एग्स के ऊपर कैसी कोटिंग होती है? जेली वाली, मतलब बहुत स्टिकी स्टिकी सी कोटिंग होती है. द सेकेंड वन इज टैडपोल. within a few days eggs develop into tadpoles. Tadpoles live underwater. Tadpoles look like small fish and breathe through gills. They eat plants. They breathe through gills. They eat plants. Other tadpoles and small insect. Few days
एग डेवलप इनटू टैडपोल्स। एग किस में कन्वर्ट हो जाता है? टैडपोल्स में। टैडपोल्स लिव अंडर वाटर। टैडपोल्स कहाँ रहते हैं? अंडर वाटर। Tadpoles look like small fish and they breathe through gills. How they look like? They look like a small fish, and just like fish breathe through the gills, tadpole are also breathe from the gills. They eat plants. वो plants खाते हैं, other tadpoles or small insects. Now third is tadpole with hind legs. Tadpole with hind legs. Tadpoles first grow hind legs, first grow hind legs and then forelegs, and then forelegs. A tadpole forms into a froglet. Which look like a frog. Which look like a frog with a tail. A froglet lives on land and they breathe through lungs. Tadpoles first grow hind legs and then forelegs. सबसे पहले उनके hind legs आते हैं, मतलब आगे वाले legs आते हैं. After that forelegs. A tadpole forms into a froglet. जो tadpole होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रॉगलेट. जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, फ्रॉगलेट में कन्वर्ट हो जाता है. विच लुक लाइक अ फ्रॉग. और ये किसकी तरह दिखने लगता है? फ्रॉग की तरह दिखने लगता है. और इसके एक टेल होती है. यू ऑल सी इन द पिक्चर ना, इट हैज अ टेल ऑल्सो. अ फ्रॉगलेट लिव्स ऑन लैंड एंड दे ब्रीथ थ्रू लंग्स. जो टैडपोल होते हैं वो कहाँ रहते हैं? लैंड पे रहते हैं. और जो टैडपोल होते थे वो वाटर में रहते थे, बट जो फ्रॉगलेट होते हैं वो लैंड पे रहते हैं और दे ब्रीथ्स थ्रू लंग्स. टैडपोल ब्रीथ्स थ्रू गिल्स बट टैडपोल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स. ओके, एंड द लास्ट इज फ्रॉग. अब लास्ट स्टेप क्या होगी? वंस द टेल disappears, it becomes an adult frog. Frog eat small insects. फाइनल स्टेज में क्या होगा कि ये जो टेल है वो डिसअपियर हो जाएगी, मतलब गायब हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा? एक एडल्ट फ्रॉग. द फ्रॉगलेट बिकम्स एन एडल्ट फ्रॉग एंड इट ईट्स स्मॉल इंसेक्ट. सो दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. फर्स्ट वी हैव द एग, देन इट बिकम tadpole, then froglet, and last an adult frog. Okay, so student, you should also write like this. And firstly you draw the lines in the blank columns, after that you start writing. Okay, now second question is, what do you understand by the term metamorphosis? Explain the metamorphosis in frog. Metamorphosis क्या होता है? A complete change
in form of an organism is called metamorphosis. A tadpole undergoes a complete change in its physical appearance to become a frog. A complete change. Yes, student, what is this question says? A complete change in form of an organism is called metamorphosis. एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में completely चेंज आना, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. अ टैडपोल अंडरगोज अ कंप्लीट चेंज इन इट फिजिकल अपीयरेंस टू बिकम अ फ्रॉग. और टैडपोल जो होता है, ये जो टैडपोल हमें दिख रहा है, ये कंप्लीटली चेंज हो जाता है एक फ्रॉग बनने के लिए, क्योंकि यहाँ आप देख सकेंगे कितना डिफरेंट लग रहा है. फ्रॉगलेट बनने के बाद ये कितना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, और जब ये लास्ट में फ्रॉग बनता है तो इट लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट. तो इसके फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ रहे हैं ना, तो इन्हीं चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं. सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू पॉइजनस सब्सटेंसेज इन वाटर अफेक्ट द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग्स? जो वाटर के अंदर पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, जहरीले पदार्थ होते हैं, वो किस अकॉर्डिंग अफेक्ट करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग? सो वी राइट poison substances in water can make poisonous substance in water can make tadpoles slow in their movement This makes them an easy prey for fish. Sometimes many tadpoles die because of pollution. Yes, student. What was the effect on life cycle of frog from the poisonous substance? Poisonous substances in water can make tadpoles slow in their movement. जो poisonous substance होते हैं वाटर में, उनकी वजह से tadpoles की जो movement होती है वो कैसी हो जाती है? स्लो हो जाती है. This makes them an easy prey for fish. अगर उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है तो उन्हें जो वाटर में फिश रहती है वो उन्हें ईजिली ईट कर लेती है. प्रे मतलब जो टैडपोल्स होते हैं वो फिश का शिकार बन जाते हैं, वो ईजिली उन्हें ईट कर लेती है. समटाइम्स मैनी टैडपोल्स डाई बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. और इस वाटर पोल्यूशन की वजह से मैनी टैडपोल्स हैं वो वाटर में ही
डाई हो जाते हैं, दैट मीन्स मर जाते हैं। तो उनकी हेल्थ पे, उनके मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है पॉइजन सब्सटेंस। इस वजह से फिश उन्हें ईजिली ईट कर पाती है और वो कभी कभार वो पॉल्यूशन की वजह से मर भी जाते हैं। So student, these are the 3 questions you have to done in your workbook, and you should write in very neat and clean handwriting with drawing these lines in the columns, and take care of your handwriting also and learn these questions. We will meet in our next meeting. Till then, bye bye and stay safe.